Welcome back, everybody. This is our 7th class in JEE Mains previous year questions of chapter Waves of class 11th. Before this, we have made 6 videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go and check those videos also. And if you found these videos useful, then you can press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. When you share and subscribe, it helps us a lot to grow and keep on these series continue. Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your helps or your donations, we will be able to keep on making these videos and keep on bringing you quality content. So with this, let's start today's video, and hopefully this will be the last video in this series. In previous video, I think we have completed up to question number 75 or something, or 70 or something, I think. Let's check. 71, 2, 3, 4, 5, 6. Here it is. We have completed up to question number 75, and today we will start with question number 76. So here it is, question in front of your screen. You can try to answer it by pausing the video, or you can solve it with me. So two sitar strings A and B having playing the note are slightly out of tune, producing beats of frequency 5 Hz. The tension in the string is slightly increased and the beat frequency find to be decreased by 3 Hz. If the frequency of A is 425 Hz, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ बी. सो आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमें पता है 425 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हमें पता नहीं है, वो अननोन है हमारे लिए. एंड इन स्टार्टिंग जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्स. तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है, इट मीन्स दैट जो बी की फ्रीक्वेंसी होगी वो ए के प्लस माइनस 5 के अंदर होगी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, 425 माइनस 5 यानी कि 420, और 420 प्लस 5 यानी कि 430 हर्ट्ज. तो हमारे पास बी के लिए ये दो ऑप्शन होते हैं. नाउ एज पर क्वेश्चन कि जो बी की स्ट्रिंग की टेंशन है, टेंशन को स्लाइटली इंक्रीज कर दिया गया. अब टेंशन से क्या होता है, जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग के अंदर साउंड की, दैट इज डिपेंड्स अपॉन टेंशन. सो वेलोसिटी is directly proportional to under root of tension, and we also know जो frequency है is proportional to velocity होता है, और velocity is proportional to tension है. यानी अगर आप टेंशन को इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी. सो बिकॉज बी की टेंशन को इंक्रीज किया गया है तो बी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. तो या अगर 420 है तो 420 से इंक्रीज होगी, अगर 430 है तो 430 से इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, 421 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो 431, 432, 433 कहीं तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं. नाउ ए की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है 425 एज पर गिवन. तो जब 420 थी तो ए के साथ हमें कितने बीट मिलने वाली थी, 5 बीट्स मिलने वाली थी. 421 होती है तो हमें मिलेंगी 4 बीट्स. 422 होती है तो 425 माइनस 422 हमें मिलते हैं 3 बीट्स, और यहाँ पे मिलते हैं हमें 2 बीट्स. इस सिनेरियो में हमें यहाँ पे 5 बीट्स मिलते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 बीट्स. और फ्रीक्वेंसी जब टेंशन इंक्रीज की थी तो बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गई थी. तो यहाँ पे 3 कहीं नहीं आता, ओनली दिस ऑप्शन में हमारे पास 3 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी आती है. तो यानी कि टेंशन इंक्रीज करने के बाद फ्रीक्वेंसी ये है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बी की 420 हर्ट्ज थी. तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A toy car blowing its horn is moving with steady speed of 5 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर जा रही है। ऑब्जर्वर टुवार्ड्स whom the toy car is moving is able to hear 5 beats per second if the velocity of sound in air 340 frequency of the horn of the toy car is close to। सो इस क्वेश्चन में सिनेरियो समथिंग लाइक ऐसा है कि आपके पास एक दीवार है, सपोज दिस इज वॉल, एंड यहाँ पे एक व्हीकल है जो कि क्या कर रहा है, साउंड एमिट कर रहा है और वो वॉल से दूर मूव कर रहा है। एंड एक पर्सन है आपके पास यहाँ पे जो हियर करता है। अब इस पर्सन के पास दो टाइप से साउंड आएंगे। पहला साउंड आएगा व्हीकल से डायरेक्ट साउंड, और दूसरा साउंड आएगा कि व्हीकल का जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके आएगा दीवार से। ओके, सो ये हमारा सपोज F1 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा। जो पर्सन है यहाँ पे ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सो ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग। ओनली F1 के केस में जो सोर्स है वो पर्सन के पास आ रहा है, और F2 के केस में जो डिस्टेंस है F2 के लिए वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि F2 के सिनेरियो में जो सोर्स है वो पर्सन से टाइम के साथ दूर जा रहा है। सो F2 के सिनेरियो में जो फ्रीक्वेंसी है इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, एंड F1 के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। सो फाइंड आउट करते हैं पहले हम F1 के लिए। सो F1 विल बी F नोड जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज 340, और ऊपर ऑब्जर्वर होता है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर ही नहीं रहा, और जो आपका सोर्स है वो पर्सन के पास आ रहा है, सो दैट क्या होगा, इसकी आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए इसकी वेलोसिटी को माइनस किया जाएगा, और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एज पर मेंशन। सो 340 माइनस 5। सिमिलरली F2 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो F नोड 340 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में F2 डिक्रीज करेगी। सो दिस इज F नोड 340 335, दिस इज F नोड 340 बाय 345। अब पर्सन के पास ये दो फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, और जो पर्सन है उसको 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई देती हैं। अगर 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही हैं, इसका मीन दैट जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं उनका डिफरेंस कितना है, 5 है। सो हम यहाँ पे जस्ट नंबर देख के बता सकते हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी हायर होगी, ये वाली लोअर होगी, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5, और F नोड इंटू 340 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, 1/335 माइनस 1/345 इज इक्वल टू 5। सो F नोड 340 एलसीएम आ जाएगा 335 इंटू 345 माइनस 335 is equal to 10, and from this F node is equal to 10 times 335 345 divided by, sorry ये 335 था, divided by 340 into 10, and ये 5 था, सॉरी यहाँ से 5 था, तो ये 5 होगा। सो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 पे जाएगा ऐसे, और जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 169.96, और जो कि देता है 170 हर्ट्ज के आसपास आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन डी के साथ स्लाइड मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So two engines pass each other moving in opposite direction with uniform speed of 30 meter per second. One of them is blowing a whistle
at frequency 540 hertz. Calculate the frequency heard by the driver of second engine before they pass each other. Speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड. सो आपके पास दो इंजन है. सपोज दिस इज फर्स्ट इंजन, दिस इज सेकेंड इंजन, और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं इस वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड से. तो पहले वाला जो है वो साउंड एमिट करता है कितने का, 540 हर्ट्ज का, और दूसरे वाला उसको सुनता है. तो यहाँ पे ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है. तो जो फ्रीक्वेंसी हियर्ड होगी एफ डैश विल बी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू, बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330. ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये प्लस हो जाएगी यहाँ पे, और सोर्स के रिस्पेक्ट में ये माइनस हो जाएगी. सो दिस विल बी 540 इंटू 36 डिवाइड बाई 33, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर गिव्स 640 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन डी होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Train is moving on a straight track with speed 20 meter per second. It is blowing a whistle. Frequency given है. Percentage change in frequency heard by a person standing near to the track when the train passes him. तो ये बतानी है कि जो पर्सन है उसको फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज अपीयर होगा जब ट्रेन उसके जस्ट पास करती है. तो इस सिनेरियो में क्या होगा, पहले तो ट्रेन उसकी तरफ आ रही होगी और फिर ट्रेन उससे दूर जा रही होगी. तो दो सिनेरियो होंगे. ये सपोज आपका पर्सन है और हम लाइन ऑफ साइट की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट जो ट्रेन है वो उसकी तरफ आ रही है और फिर ट्रेन उससे दूर जा रही है. सो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट. जब पास आ रही होती है तो उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, जब दूर जा रही होती है उसको रेड शिफ्टिंग बोलते हैं इन कॉस्मोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जब पास में आ रही है इसको फ्रीक्वेंसी f1 बोलते हैं, जब दूर जा रही है फ्रीक्वेंसी f2 बोलते हैं. सो f1 विल बी, और ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट में है. सो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000, स्पीड ऑफ साउंड 320, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, डिवाइड बाय 320 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज 20. सो दिस विल गिव 1000, 320, 300. F2 कैलकुलेट करते हैं. F2 के सिनेरियो में जो आपका सोर्स है वो दूर जा रहा है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी 320 बाय 320 प्लस 20. सो 1000, 320 बाय 340. नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं कि चेंज कितना होगा. चेंज इज डेल्टा एफ, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ज़्यादा कौन सा होगा, F1 विल बी ग्रेटर. सो डेल्टा एफ हम बिकॉज पॉजिटिव लेके चलेंगे. सो F1 माइनस F2, और ये हो जाएगा दोनों में से वी कैन टेक जो 1000 है, 1000 एंड 320 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बचता है 1/300 माइनस 340, और इसको सोल्व करते हैं 1000 इंटू 320 सब्ट्रैक्ट करके ये 40 आएगा, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 340 इज इक्वल टू डेल्टा एफ. और बिकॉज हमें रिलेटिव चेंज बताना है कि रिलेटिव चेंज कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, या नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी हेड बाय पर्सन. सो F1 से फ्रीक्वेंसी F2 हो जाती है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया. अब रिलेटिव चेंज बनाना होगा तो इसको F1 से डिवाइड करेंगे. सो F1 से डिवाइड करने के लिए ये हमारे पास F1 है. सो डेल्टा F बाय F1 विल बी 1000, 320 इंटू 40, 300, 340, और अब F1 से डिवाइड करते हैं तो ये 1000 है, 320 है, और डिवाइड बाय 300 है. सो 1000 यहाँ कैंसिल, 320 यहाँ पे कैंसिल, और 300 यहाँ पे कैंसिल. तो आपका हमारे पास बचता है 4/34 और 2/17.
और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 6 जा 102 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 12% हमारा आंसर होगा। और अब जाके इसको अगर मैच करें हम, तो हेयर इट इज, जो ऑप्शन डी है हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So, a source of sound emits sound wave frequency f node. It is moving towards an observer with fixed speed. Speed fix है vs, और where vs is less than v, where speed of sound in air. If the observer were to move towards the source with speed v node, one of the following graphs A or B will give the correct variation of the frequency heard by the observer as v node is changed. So हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बनाना होगा और फिर उस रिलेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं टर्म्स। एफ नोड हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और एफ हम ले लेते हैं जो हम फ्रीक्वेंसी हियर करेंगे, जो कि मेंशन है। सो एफ विल बी एफ नोड इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास v है, और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की स्पीड v नोड है, एंड मूव टुवर्ड्स द सोर्स, तो सोर्स के पास जा रहा है, तो मतलब कि ऐड होगी डिवाइड बाय v, एंड नाउ वेट ए मिनट, यस, एंड जो हमारा सोर्स है, हियर इट इज फॉर सोर्स, कि जो सोर्स है वो भी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एस, जहाँ पे एस सोर्स के लिए है और वी नोड ये ऑब्जर्वर के लिए। और हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ हमारा यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी वर्सेस व्हाट इज वी नोड इज अ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। सो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों जगह हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म यहाँ पे बनानी है। और y कौन है यहाँ पे, y इज द अपरेंट फ्रिक्वेंसी f, और जो x है, x इज v नोड, x है हमारे पास v ऑफ ऑब्जर्व, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड y एक्सिस पे हमारे पास अपरेंट फ्रिक्वेंसी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। सो f इज इक्वल टू f नोड v by v minus vs plus f v node v minus vs, सॉरी ये f नोड आएगा। हमें ये पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कांस्टेंट है, फिक्स स्पीड है सोर्स की, सो vs कांस्टेंट है, तो ये नीचे वाली टर्म दोनों के लिए कांस्टेंट होगी। और अगेन यहाँ पे जो ये वाली v है, इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ये हमारे पास mx टर्म है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट f इज इक्वल टू f नोड v माइनस वी एस इंटू वी नोड प्लस f नोड v माइनस वी एस। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये हमारे पास किसका काम करेगी, स्लोप का, और ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास किसका काम करेगी, कांस्टेंट का, यानी कि इंटरसेप्ट का। सो फ्रॉम दिस दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नोड। और अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है यही हमारा है, जहाँ पे f और v नोड का ग्राफ है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो ए हमारा सही है, बी हमारा रॉन्ग है, एंड जो ए का स्लोप हो जाएगा इट इज एफ नोड बाय वी माइनस वी एस। सो हेयर इट इज ऑप्शन सी, ग्राफ ए विद स्लोप एफ node by v minus vs. This will be the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bat is moving at 10 meter per second towards the wall, sends a sound signal 8000 hertz towards it. On reflection, it hears a sound of frequency f. The value of
एफ इन हर्ट्स इज क्लोज टू, तो हमें उसको ये बताना है कि रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसी उसके लिए कितनी होगी। नाउ बिकॉज जो बैट है वो दीवार की तरफ मूव कर रहा है, तो वही सिग्नल को एमिट कर रहा है और वही सिग्नल को लिसन कर रहा है, तो बैट यहाँ पे सोर्स का भी काम कर रहा है और ऑब्जर्वर का भी काम कर रहा है। सो सोर्स भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो आपकी न्यू एपरेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, velocity of sound plus velocity of observer, velocity of sound minus velocity of observer, बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 8516 हर्ट्ज, जो कि हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। ए सोर्स ऑफ साउंड A emitting waves frequency 1800 Hz falling towards the ground with terminal speed v. The observer B on the ground directly beneath the source receive a signal 215 Hz. The source A receive reflected wave from the ground of the nearly. तो ये बताना है कि जो सोर्स है वो रिफ्लेक्टेड वेव जब रिसीव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो आपका ये सोर्स है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और बिकॉज ये किस पे फॉल कर रहा है, टर्मिनल स्पीड पे फॉल कर रहा है, तो टर्मिनल स्पीड का मतलब हो जाएगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और फर्स्ट सिनेरियो में ऐसे हो जाएगा आपके पास कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे पर्सन है और ये सोर्स है। सोर्स ने ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कितनी एमिट की, 1800 हर्ट्ज की, और जब वो उस तक पर्सन तक पहुंचती है वो फ्रिक्वेंसी वो हो जाती है 215 हर्ट्ज की। सो जो पर्सन तक फ्रिक्वेंसी पहुंच रही होगी, यहाँ पे पर्सन ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और ये सोर्स है, सोर्स मूव कर रहा है पर्सन की तरफ। सो 2150 इज इक्वल टू 1800, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे 343 गिवन है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, 343 माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स सॉरी वीएस, और यहाँ पे जो सोर्स है वो किस में है, पर्सन की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। सो फ्रॉम दिस 2150 डिवाइड बाय 1800 इज इक्वल टू 343 माइनस वी एस। सो यहाँ पे हम कट कर सकते हैं इसको, एंड 3257 सो 5 पे करते हैं इसको, और ये जाएगा 36। नाउ फर्दर सोल्व कर सकते हैं, 43 इंटू 343 माइनस 43 वी एस 36 343। इस टर्म को एक्सचेंज करते हैं तो 43 माइनस 36 होता है 7 इंटू 343 इज इक्वल टू 43 वी एस, और वी एस आ जाएगा 7343 बाय 43। अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ये 6 पे जाएगा, और 6 से आगे 5 एंड 7 57। तो जो एग्जैक्ट आंसर है आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज 55.8 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। नाउ अब हमसे पूछा गया है कि सेम वेव जो नीचे की तरफ आ रही थी वही वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ भी जाएगी। ये वेव जो नीचे आई थी ये वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस सोर्स की तरफ जा रही है, तो अब सोर्स इसको कितनी फ्रिक्वेंसी से सुनेगा। तो नाउ जो आपका सोर्स है वही ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, और इस केस में जो आपकी अपरेंट फ्रिक्वेंसी हो जाती है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 1800 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 343 है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमने कैलकुलेट कर ली दैट इज 55.8 डिवाइडेड बाय 343 माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये ऑब्जर्वर थी और यही सेम सोर्स है, और जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2499 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन बी 2500 हर्ट्ज से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Two factories are sounding sirens at 800 hertz. A man goes from one factory to another with speed 2 meter per second. The velocity of sound is 320. The number of beats heard by the person. तो एक फैक्ट्री से पर्सन दूर जा रहा है और एक के पास आ रहा है, तो इस सिनेरियो में जो बीट्स उसको सुनाई देंगी, तो हम दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं F1। तो ये पहले ही है जिसके वो तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स मूव नहीं कर रहा। सो 1800 इंटू 320 प्लस 2 डिवाइड बाय 320, और F2 जिससे वो दूर मूव कर रहा है और यहाँ पे भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सो 320 माइनस 2 बाय 320। सो जो हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी दैट विल बी F1 माइनस F2, दोनों में 800 बाय 320 कॉमन आ जाएगा, 322 और ये 318, तो ये हमें देगा 4 सब्ट्रैक्ट करके, और फ्रॉम दिस ये 80 और ये जाएगा 10 पे। सो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two sources generating sound wave. A listener is situated at C. Frequency of the source at A is 500 hertz. Now A now moves towards C. तो A C की तरफ मूव करता है with speed 4 मीटर पर सेकेंड। सो C की स्पीड हमें 4 मीटर पर सेकेंड है, A की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। द नंबर ऑफ बीट आर हियर्ड बाय C आर 6, तो इसके सिनेरियो में 6 है। When A moves away from the C with 4 मीटर पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स 18 हो जाती हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज 340, फ्रिक्वेंसी ऑफ B, तो हमें B की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बतानी है। सो A की फ्रिक्वेंसी हमें पता है, तो हम ये फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं कि जब A C की तरफ जाता है और B की फ्रिक्वेंसी को हम मान लेते हैं FB। सो हियर इट इज, B की फ्रिक्वेंसी को हमने मान लिया FB, उसके बारे रिगार्डिंग हमें नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ A के रिगार्डिंग पता है कि इनिशियली 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है और वो 4 मीटर पर सेकंड से C की तरफ मूव कर रहा है। सो और ये हम करते हैं मूविंग टुवर्ड्स C, केस 1, मूविंग टुवर्ड्स C। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी F1 जिसको हम बोल देते हैं, इट विल बी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 500 इंटू यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सो वेलोसिटी है साउंड 340 डिवाइड बाय 340 माइनस 4, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आता है 506 हर्ट्ज। अब ये बोला गया है कि ये फ्रिक्वेंसी B की फ्रिक्वेंसी के साथ कितनी बीट्स देती है, 6 बीट्स देती है। तो इससे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं FB के लिए, या तो FB इसमें से 6 माइनस होगी या 6 प्लस होगी। तो 6 माइनस करने पे आता है 500 और 6 प्लस करने पे आता है 512। तो B की फ्रिक्वेंसी में ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप ये देखिए 500 भी गिवन है और 512 भी गिवन है, तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी तो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाते हैं। नाउ अब ये बोला गया है कि जब A C से दूर जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है विद 4 मीटर पर सेकेंड, तो बीट फ्रिक्वेंसी हो जाती है 12। सो केस 2, मूविंग अवे फ्रॉम C। तो इस सिनेरियो में इसको बोल देते हैं F2, दैट विल बी 500 इंटू 340 बाय 340 प्लस 4। अब फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, दैट्स वाई डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे, तो ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास आती है 494 हर्ट्ज, एंड बीट फ्रिक्वेंसी कितना है, सो 18 है, नोट 12। सो बीट फ्रिक्वेंसी 18 है। सो ये फ्रिक्वेंसी B की फ्रिक्वेंसी के साथ कितना बीट्स देगी, 18 बीट्स देगी, और 18 बीट्स देने के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो 512 होनी चाहिए, बिकॉज 512 और 494 का डिफरेंस ही 18 होता है। सो
500 हर्ट्ज भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 512 हर्ट्ज ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजन अप्रोचेज ए हिल with constant speed. When it is at a distance 0.5 kilometer, it blows a whistle whose echo is heard by the driver after 5 seconds. If the speed of the sound in air 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इंजन हमें यहाँ पे बतानी है। सो अज्यूम कीजिए ये हमारी हिल है जो हमें एको साउंड देगी, और स्टार्ट इनिशियल में इंजन यहाँ पे था आपका, और ये कोई एक साउंड एमिट करता है और ये साउंड ऐसे जाता है और ये फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। बट जब तक साउंड आपका रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तब तक जो इंजन है, इंजन भी मूव कर चुका होगा, बिकॉज इंजन मूविंग है, इंजन स्टेशनरी नहीं है। तो जब तक साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आगे आ रहा है तब तक जो इंजन है वो भी आगे मूव कर चुका होगा। तो सपोज अब इंजन यहाँ पे पहुंच गया, तो इंजन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इंजन ने हमारे पास यहाँ पे x डिस्टेंस सपोज कवर कर लिया, और ये x कितने के इक्वल होना चाहिए? जब इसने यहाँ से साउंड को एमिट किया था, ये साउंड यहाँ तक पहुँचता है और वापस आता है, तो सपोज इसको t टाइम लगता है, जो कि ऑलरेडी गिवन है कि 5 सेकंड लगे थे। तो जो इंजन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इंजन ने 5 सेकंड ही लगाए, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए? 5 यानी कि टाइम इंटू वेलोसिटी ऑफ इंजन, यानी कि 5v। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोटेशन दे देते हैं कि ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। सो जो ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस है वो साउंड ने कितने टाइम में ट्रेवल किया है? वो 5 सेकंड में ट्रेवल किया है, और हमें पता है कि साउंड की वेलोसिटी कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साउंड? दैट इज इक्वल टू 330 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा? 1650। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? ये डिस्टेंस होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के इक्वल। और जो ए बी है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंजन एंड द हिल स्टार्टिंग में, जो कि कितना है? 0.9 किलोमीटर यानी कि 900 मीटर। सो 1650 इज इक्वल टू 900 प्लस बी सी, और यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 750 मीटर, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये 750 है और ये टोटल 900 था, तो जो ये वाला बच गया हमारे पास ये बच जाता है 900 माइनस 750, दैट इज 150 मीटर। सो 150 मीटर शुड बी इक्वल टू 5v, 5v इज इक्वल टू 150, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 and 2 of the 4 choices given in the okay. So bats emitting ultrasound wave can detect location of a prey by hearing the wave reflected from it. When the source and the detector are moving, frequency of the reflected wave is changed. तो yes, जो बैट है वो अल्ट्रासोनिक का वेव का यूज करके लोकेशन का पता कर सकता है, एंड जो सोर्स ऑफ डिटेक्टर, जब भी आपका सोर्स या डिटेक्टर मूव होता है तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों सही हैं, बट जो आपका सेकंड है फर्स्ट का वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज बैट को उसकी लोकेशन पता चलती है और वो लोकेशन उसको अल्ट्रासोनिक वेव के रिगार्डिंग पता नहीं चलती, उसके लिए वो अलग मेथड यूज करता है। सो यस, फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिविजुअल ट्रू, बट जो सेकंड है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन गिवन है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोटरसाइकिल there is a electric stationary electric siren. How far has the motorcycle gone? When the driver hears frequency of the siren to 94% of the original value,
व्हेन मोटरसाइकिल वाज एट रेस्ट। सो फ्रीक्वेंसी है जो 94% ड्रॉप हो गई है। सो इससे हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मींस f इज इक्वल टू एफ नोड इनटू वेलोसिटी ऑफ साइन इनटू, यहाँ पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर दूर मूव कर रहा है, सो एफ वी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और सोर्स एज इट इज है यहाँ पे, सो सोर्स रेस्ट पे है, सो उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, और v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज 330। सो f बाय f नोड इज इक्वल टू 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बाय वेलोसिटी 330, और ये हमारे पास क्या है 94%, यानी कि 94/100। सो दिस इज 94/100, और जब इनको सॉल्व करेंगे हम, सो हमारे पास v नोड की वैल्यू आ जाती है 19.8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी, कि इस वेलोसिटी के पे पर्सन को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 94% फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब हमें पता है कि इनिशियल एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और फाइनल वेलोसिटी हमें ये है गिवन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, so 19.8 into 19.8 is divided by twice of acceleration, that is 2, is equal to s। so this is, ये हो जाएगा 9.9 और ये भी हो जाएगा 9.9। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, these are 10 into 10 ऑलमोस्ट, तो 10 into 10 ऑलमोस्ट आपके पास 100 होता है, और जो ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे हमारा मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A whistle producing sound waves of frequency 9500 Hz above approaching a stationary person with speed v मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, पर्सन को फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है अप टू 10,000 हर्ट्ज। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी विसल की कितनी हो सकती है। सो पर्सन को 10,000 मैक्सिमम सुनाई दे सकती है, और विसल की ओरिजिनल 9500 है, और बिकॉज पर्सन ऑब्जर्वर का काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है और पर्सन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि सोर्स की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 है, सो 300 बाय 300 माइनस वी, ये जीरोस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे हम। सो 100 बाय 95 इज इक्वल टू 300 वी, एंड फ्रॉम दिस ये 2 जीरो भी हम यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। So this will be 300 minus v is equal to 95 into 3। So यहाँ से हमारे पास माइनस v आ जाएगी, 95 into 3 होता है 180, नोट 270 प्लस 15 माइनस 285 और माइनस 300। सो यहाँ से v आ जाता है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी होगा। Moving to last question, an observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of sound. What is the percentage increase in apparent frequency? So apparent frequency हो जाएगी original frequency velocity of sound plus, because जो आपका यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड मूव कर रहा है, सो v/5। और यहाँ पे सोर्स एज इट इज रेस्ट पे है, तो उसका कुछ नहीं होगा। सो दिस विल बी f 6v/5 by v, so here it is f dash is equal to 6/5 of f, और अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो दिस विल बी f dash by f is equal to 6/5, that is 1.2 और 12%। I think actually we have to calculate increase, percentage increase we have to calculate। so percentage increase अगर हमें बताना है तो हमें यहाँ पे पहले चेंज निकालना पड़ेगा। so for that f by f dash is 6/5, चेंज हो जाएगा, दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। so f dash by f minus 1 is equal to 6/5 minus 1, और ये हो जाएगा f dash minus f by f is equal to 1/5। दिस इज डेल्टा f by f, यानी कि चेंज बाय ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, 1/5 यानी कि 24%। सो विद दिस हमारे
इस क्वेश्चन के और क्लास 11 से रिलेटेड सभी जो चैप्टर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर्स अप टू 2020 हमने कवर कर दिए हैं। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट फॉर क्लास 12th एंड होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड if possible do like this video, share as much as possible and subscribe to our channel also। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो आप डोनेशन दे सकते हैं, इससे हमें अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। सो विद दिस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।